Hello, everyone, and welcome back to another session of Monday Booster. I hope I am audible and visible. Please let me know. I am audible. The screen is visible. Very good evening. Very good evening. I hope you all, especially the Sun Batch student, you all have had your dinner. जितने भी Sun Batch के बच्चे हैं, because now here I am having two audience. Uh, we have student from our Sun Batch and we have student from our C plus as well. So very good evening and welcome back for Sun Batch student related to this Monday booster. And I hope आप सब लोगों ने dinner किया होगा and this is the right time. Let us quickly revise our practice full MCQ. So very good evening, Kaveri. We have Kaveri here and on the other side we have Himanshi, Komal. Very good evening, very good evening. Right. So today we will be covering our practice full MCQ discussion, a short and brief discussion जहां पे आपके practice full के MCQ को हम revise करने वाले हैं, right? Revise करने वाले. So again, जो आज एक बड़ा ही coincidence हुआ है ये because in the Sun Batch I have a live session और Sun Batch में हमने आज dose calculation ही पढ़ा था, so I have intentionally kept some drug calculation question in the first slide. Right, so yes, try you all. We have a same rule. Read the question carefully, and then you have to tell me the correct answer. So this is your first question. You can all see this question in your practice full book, page number 16. Page number 16 में पहला question है practice full का. The subject is fundamental of nursing. I hope the screen is visible to all. Very good evening. Very good evening. Please let me know the screen is visible to all. ग्रेट. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है. देखो अब ध्यान से देखना एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. सो एट 7 a.m. द नाइट नर्स हैज स्टार्टेड 500 ml of DNS and adjust the flow rate at 35 ml per hour as per the doctor order. If the IV infused at the proper rate, how much fluid should be left in the bag when the day nurse make round at 11:30 a.m. halfway through the shift? So you need to identify. This is one of the drug calculation question asked in the previous government entrance examination, right? So how to solve this and what will be the correct answer? Let us quickly revise the question and find out what is the important point that we have in this question. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 500 ml ऑफ DNS, राइट? एज अ नाइट स्टाफ मैंने सुबह 7 बजे 500 ml. सो लेट मी हैव दिस क्वेश्चन. 7 a.m. सुबह 7 बजे आई हैव स्टार्टेड अ 500 ml IV fluid DNS, राइट? इसको जब आपने स्टार्ट किया तो फ्लो रेट ऑलरेडी गिवन है. फ्लो रेट क्या है? इट इज 35 ml पर आवर में आपने स्टार्ट किया है. 35 ml पर आवर में आपने स्टार्ट किया है. दिस इज योर फ्लो रेट विच इज ऑलरेडी गिवन, राइट? अब आपने 11:30 AM पे एट 11:30 आपने दोबारा से राउंड लिया, जो आपने मतलब मॉर्निंग स्टाफ जो थी उसने राउंड लिया. 11:30 AM पे ये जो सेम IV फ्लूइड है इसमें आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज लेफ्ट इन दिस बैग. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, राइट? सो ये इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ फ्लो रेट. What is the formula of flow rate? Flow rate we all know can be calculated in two ways. One is ml per hour, one is drops per minute, right? So here we are talking about ml per hour. So what is the formula for ml per hour? Per hour, flow rate in ml per hour is equal to total volume in ml
divided by time in hours. This is the formula that we will be using here in this to solve this question. Right? Again, सबसे पहले अगर हम देखें तो डॉक्टर ने टोटल वॉल्यूम जो बोला था आपको स्टार्ट करने के लिए, इट वाज 500 ml ऑफ डीएनएस. फिर जो नर्स थी उसने 7 AM पे स्टार्ट कर दिया 500 ml का सोल्यूशन. 7 AM से लेके 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक ये 500 ml का जो सोल्यूशन है इसमें से कुछ तो गया होगा. द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर्ड, कुछ अमाउंट गया होगा. पहले फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कितना वॉल्यूम गया है. राइट, 7 से 11:30 बजे तक सुबह कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हैज बीन एडमिनिस्टर्ड. राइट, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है. तो 7 से 11:30 ड्यूरेशन कितना हुआ, व्हाट विल बी द टाइम. अगर हम कैलकुलेट करें 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11:30, दैट मीन्स 4.5 आवर्स का आपके पास टाइम है. 4.5 घंटे में आपने जो है पेशेंट को, फ्लो रेट कितना था, फ्लो रेट आपका क्वेश्चन में दिया है 35. अगर आप 35 ml पर आवर की स्पीड से, फ्लो रेट से पेशेंट को 4.5 घंटे में एडमिनिस्टर करोगे फ्लूइड, तो कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्टर करोगे, कितना जाएगा टोटल वॉल्यूम में से. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट दिस. राइट, सो ये सिंपल फॉर्मूला में लिखेंगे, फ्लो रेट which is ml per hour equal to volume. Now here we need to identify, we have no idea the ml, how much ml of fluid has been administered in 4.5 hours. So we'll take the value of x, right, divided by time in hour. Total time है 4.5 hours, 7 बजे से 11:30 बजे. Right, अब now we have to put all the value. फ्लो रेट हमें दिया है 35 ml पर आवर, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 35 ml पर आवर, इक्वल टू एक्स. एक्स हमें निकालना है, कितनी वैल्यू जा चुकी है. टाइम इन आवर्स, टाइम भी हमें ऑलरेडी गिवन है 4.5 घंटे. अब इसको डिवाइड करेंगे. इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, वट एवर वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू पुट इट ऑन वन साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. राइट, तो x आ जाएगा एक साइड एंड वी हैव 35 ml पर आवर मल्टीप्लाई बाय 4.5 आवर्स. तो आवर्स से तो आवर्स कट गया एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो 35 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर फॉर द क्विक रेफरेंस so that we can have answer, we can get the answer quickly, but by the time you all can also do the calculation, right? Yes. So we have 35 multiplied by 4.5. This way you will get x आ जाएगा 157.5. वैल्यू क्या बची, ml. सो मीनाक्षी का क्वेश्चन है कि हाउ, यहाँ पे हमारा पहले तो x आ गया. राइट, आई विल टेल यू, आई विल आंसर योर क्वेश्चन मीनाक्षी. बट हेयर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट वी हैव हेयर, जो हमने फाइंड आउट किया है, it is the amount or volume of fluid that has been administered from 7 AM till 11:30 AM. सुबह 7 से 11:30 बजे तक इतना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 500 टोटल था, 500 में से इतना जा चुका है. लेकिन ये आंसर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर. ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बिकॉज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ हमें निकालना है कितना बचा है. How much volume of fluid is left from 7 till 11:30 in your bag? इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम थी 500 ml, उसमें से माइनस कर दोगे 157. राइट, ये टोटल वॉल्यूम से अभी तक इतना गया है, इसको जब आप माइनस करोगे 500 minus 157.5, so you will get around 342.5 ml. This will be your answer. Very good Priyanka, very good. So very good Sheetal. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 345. So somewhere around 340 के अराउंड आ रहा है. That means option number C will be your correct answer.
समझ में आया? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. प्लीज लेट मी नो दोज हु हैव ज्वाइन. क्योंकि हमें लेफ्ट ओवर पूछा था कितना बचा है, इसीलिए आपने टोटल जो 500 था उसमें से इतना जा चुका है, माइनस करेंगे तो इतना बचेगा बैग में. सो सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 342.5 ml बचा है. राइट. नाउ देर इज वन क्वेश्चन के हाउ वी विल फाइंड आउट कि हमें ml वाला फॉर्मूला लगाना है या ड्रॉपलेट वाला फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज फ्लो रेट आर जनरली कैलकुलेटेड इन दीज टू फॉर्मूला. वन इज ml पर आर, जिसमें फ्लो रेट का फॉर्मूला ये है. ड्रॉप्स पर मिनट वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है? इट इज टोटल वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट. राइट. ये यूजुअली गिवन होता है क्वेश्चन में ही गिवन होगा. अब ये वाले क्वेश्चन में देखो जो फ्लो रेट है वो किस में दिया है? ml पर आर में दिया है. ml पर आर में दिया है मतलब फॉर्मूला ml पर आर वाला निकलेगा. अगर आपको फ्लो रेट ड्रॉप्स पर मिनट में दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता. सो जनरली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आप कौन सा यूज करोगे. इसके अलावा एक और ट्रिक है याद रखने की. जब भी आप कभी इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप यूज करते हो, whenever you are using infusion pump या सिरिंज पंप को सेट करके कोई भी इंफ्यूजन देना है, तो उस केस में हम ml पर आर वाला फॉर्मूला फ्लो रेट यूज करते हैं. राइट. नॉर्मल आईवी सेट यूज करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यूज करोगे जिसमें कोई इंफ्यूजन पंप नहीं दे रहे हो, तब आप फ्लो रेट ड्रॉप्स पर मिनट में सेट करोगे. फीडिंग टाइम में हेड ऑफ द बेड एट 15 to 30 डिग्री एंगल सेमी फाउलर रखेंगे, ताकि पेशेंट को फीडिंग के टाइम में चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे इंटरमिटेंट हो, एनजी फीडिंग में हेड ऑफ द बेड एट 15 to 30 डिग्री सेमी फाउलर पोजिशन, अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना. राइट. सो आई होप ये सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नॉर्सेट का नहीं, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया. चलो लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन and you the student from the sun batch you can have a quick revision of this question जहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लोगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. सो हेयर इन दिस क्वेश्चन, ये आपका पेज नंबर 16 पे है क्वेश्चन, प्रैक्टिस पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2. राइट. साइड बाय साइड आंसर भी लिखते जाओ प्रैक्टिस पॉइंट. सो डॉक्टर ऑर्डर टू एडमिनिस्टर 500 मिलीग्राम ऑफ एंटीबायोटिक, जो कि आपको ऐड करना है 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में. डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 500 मिलीग्राम एंटीबायोटिक 50 ml नॉर्मल सलाइन में देना है, विच शुड बी एडमिनिस्टर 4 times a day, जो कि दिन में 4 बार देना है. द एंटीबायोटिक इज सप्लाइड इन सिंगल डोज वाइल 1 ग्राम, और उसके अंदर डायरेक्शन लिखा है कि 0.8 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे, इट विल गिव यू 1.2 ml. राइट. हाउ मच एंटीबायोटिक सोल्यूशन शुड बी एडेड टू 50 ml नॉर्मल सलाइन? अगर डॉक्टर ने 50 ml पर आर दिया है तो आप ml पर आर नहीं निकालोगे, आप ड्रॉप्स पर मिनट में क्यों निकालोगे? नो, इफ योर क्वेश्चन स्टार्टेड फ्लो रेट ही आपका ml पर आर का है, राइट, तो आप ml पर आर में ही आंसर निकालोगे, इसी में ही आपका जाएगा. चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन को पहले समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, के क्वेश्चन में बोला क्या. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डॉक्टर का जो ऑर्डर है, डॉक्टर का जो ऑर्डर है वो है कि आपको 500 मिलीग्राम एंटीबायोटिक देना है. राइट. ये 500 मिलीग्राम एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है, और स्टॉक स्ट्रेंथ मतलब आपके हाथ में या आपके पास आपकी नर्सिंग स्टेशन में या फार्मेसी में ये जो एंटीबायोटिक है उसका क्या डोज है? उसका डोज है 1 ग्राम. आपके पास अवेलेबल क्या है? 1 ग्राम है. यस मोनिका, यू हैव टू करेक्ट दिस. राइट. सो दोज हु आर हैविंग प्रैक्टिस पोल विद देम,
प्लीज मेक श्योर इसका आंसर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे डॉक्टर का ऑर्डर है 500 मिलीग्राम। आपके पास स्टॉक स्ट्रेंथ कितनी है? 1 ग्राम की है। आपके पास क्या है? 1 ग्राम की स्टॉक स्ट्रेंथ है। मतलब सेम एंटीबायोटिक जो आपके पास अवेलेबल है वो 1 ग्राम का डोज है उसका, राइट। पूरा अभी अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को समझ गए। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 500 मिलीग्राम। स्टॉक स्ट्रेंथ का मतलब आपके नर्सिंग स्टेशन में यही सेम ड्रग या फार्मेसी से जब आपको मिल रहा है या आपके हाथ में ये सेम ड्रग 1 ग्राम का है, राइट। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ये जो 1 ग्राम की जो डोज है, जो ड्रग है, जो एम्प्यूल है या जो भी वाइल है, वाइल मानो, या जो वाइल है यहाँ पे 1 ग्राम का, इसमें जब आप 0.8 ml नॉर्मल सलाइन मिलाओगे, दैट मीन्स ये पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि जनरली एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में आती है। तो वो पाउडर फॉर्म एंटीबायोटिक जो 1 ग्राम की है उसमें जब आप 0.8 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे तो ये आपको ऐड करने पे क्या मिल जाएगा? 1.2 ml सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक वो है, वाइल है, राइट। वो वाइल में पाउडर है, एंटीबायोटिक है, पाउडर है। उस वाइल में लिखा है 1 ग्राम की वाइल है, इसके अंदर जो डोज है वाइल का वो 1 ग्राम है। उस वाइल के अंदर अगर आप 0.8 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करोगे डाइल्यूट करने के लिए, ऐसी करते हैं ना एंटीबायोटिक डाइल्यूट, 0.8 ml जब डाइल्यूट किया तो ये इसके अंदर जो पानी बन गया, जो सोल्यूशन बन गया, वो 1.2 ml बन गया। मतलब वो 1 ग्राम की जो दवाई आपके हाथ में थी, जो आपके स्टेशन पे अवेलेबल थी, वो 1 ग्राम की दवाई में डोज में एंटीबायोटिक में जब आपने 0.8 ml मिलाया तो 0.8 ml नॉर्मल सलाइन मिलाया तो वो 1.2 ml का सोल्यूशन बन गया। समझ में आया? इतना कोरिलेट हुआ, राइट। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया है? 500 मिलीग्राम, राइट। डॉक्टर ने 500 मिलीग्राम एंटीबायोटिक ऑर्डर की है और डॉक्टर ने बोला है इस एंटीबायोटिक को आप 50 ml के नॉर्मल सलाइन में ऐड करके तब दोगे। ये डॉक्टर में अवेलेबल है वो 1 ग्राम की, ये आपके पास अभी प्रेजेंट है आपके स्टॉक में। और इसके साथ इस एंटीबायोटिक में लिखा है कि जब आप इसको 0.8 ml नॉर्मल सलाइन इसके अंदर डालोगे तो वो 1.2 सोल्यूशन देगा। अब निकालना क्या है? हाउ मच एंटीबायोटिक सोल्यूशन शुड बी एडेड टू 50 ml नॉर्मल सलाइन। शुरू में डॉक्टर ने बोला था 500 मिलीग्राम 50 ml में ऐड करके देना है, तो ये कितना ml, ये तो मिलीग्राम है, इसका कितना ml आप 50 ml नॉर्मल सलाइन में दोगे। इसको ऐसे भी समझते हैं, जो एंटीबायोटिक होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास अमोक्सिसिलिन है, राइट, या ऑगमेंटिन है। ऑगमेंटिन की वाइल है मेरे पास, पाउडर है, उसके अंदर मैंने 10 ml नॉर्मल सलाइन मिलाया। एक बार इसको कोरिलेट करो, आई हैव अ वाइल ऑफ ऑगमेंटिन, पाउडर है, उसकी वाइल में लिखा हुआ है, जस्ट एन एग्जाम्पल, वाइल में लिखा हुआ है 1 ग्राम की वाइल है मेरे पास ऑगमेंटिन की, एंटीबायोटिक की, ये पाउडर फॉर्म में है, राइट। इसके ऊपर लिखा है कि जब मैं इसमें 0.8 ml नॉर्मल सलाइन इसके अंदर मिलाऊंगी, फिर वो पाउडर को, जो वाइल को अपने हाथों के बीच में रख के उसे रोल करूंगी ताकि मिक्स हो जाए, तो ये 1 ग्राम का जो पाउडर था वो अब सोल्यूशन बन गया है 1.2 ml का। इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? सो ये सोल्यूशन ये बन गया, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। हमें पूछा है कि अगर डॉक्टर ने 500 मिलीग्राम दिया है ऑर्डर, तो इससे कितना सोल्यूशन बनेगा? ये पाउडर के अंदर जब मैं 0.8 ml का नॉर्मल सलाइन डालूंगी तो कितना सोल्यूशन बनेगा? जो भी सोल्यूशन बनेगा उसको मैं ऐड करना है मुझे 50 ml के नॉर्मल सलाइन। सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वट एवर वैल्यू यू हैव टू राइट डाउन। सो डॉक्टर ऑर्डर मेरे पास है विच इज 500 मिलीग्राम, राइट। मेरे पास स्टॉक स्ट्रेंथ या मेरे हाथ में क्या है, अभी फार्मेसी से जो मेरे पास ड्रग है उसका डोज क्या है? वो है 1 ग्राम।
अगर आप ध्यान से देखो तो डॉक्टर ने मिलीग्राम में ऑर्डर दिया है, मेरे पास ग्राम में यूनिट है, दैट मीन्स दोनों की यूनिट अलग अलग है। हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए यूनिट को सेम करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, कोई भी यूनिट को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स एक और फॉर्मूला हमेशा याद रखना, द बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूला। नाउ द स्टूडेंट फ्रॉम द सन बैच दे कैन रिवाइज दिस। द बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूला सेज whenever you are converting any smaller unit to higher, मतलब हम कभी भी किसी छोटी यूनिट को कन्वर्ट करके किसी बड़ी यूनिट पे जाते हैं, राइट? अगर आप अभी इस लेवल पे हो, लेवल 0 पे हो, एंड आपको हाइयर लेवल पे जाना है, हाइयर लेवल मतलब आपको यहाँ 0 लेवल पे हो, आपको बहुत ऊपर लेवल पे जाना है, एम्स में जाना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अब आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिवाइड योर सेल्फ, योर डे एंड नाइट को डिवाइड करना है, तब जाके ऊंचे लेवल पे पहुंचेंगे, राइट? तो जब भी हम किसी स्मॉलर यूनिट से हम किसी हाइयर यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, किस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो भी इस यूनिट के बीच की डिफरेंस होगा, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको जो है ग्राम से मिलीग्राम में जाना है। जैसे मैं आपको यही का एग्जांपल, ये क्वेश्चन था हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन? यस। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। अब मिलीग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सोचना होगा, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना होगा इन दोनों में से स्मॉलर यूनिट कौन सी है, बिगर यूनिट कौन सी है। तो इसके लिए हमेशा ग्राम की फैमिली याद रखनी है, किलोग्राम, उसके बाद ग्राम, देन मिलीग्राम, देन माइक्रोग्राम, देन नैनोग्राम। ये आपकी ग्राम की फैमिली है। तो 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो हर एक यूनिट में 1000 अंकों का, 1000 डिजिट का डिफरेंस है, राइट? अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी स्टॉक, ये जो यूनिट है, क्योंकि डॉक्टर ने मिलीग्राम में लिखा है और हमारे पास ग्राम में अवेलेबल, तो मिलीग्राम से ग्राम में आना है आपको, राइट? मिलीग्राम क्या है, स्मॉलर यूनिट। मिलीग्राम बाद में आता है, ग्राम पहले आता है। ग्राम आपकी हाइयर यूनिट है। स्मॉलर से हम जब भी हाइयर यूनिट, नीचे से जब भी ऊपर जाओगे, डिवाइड करके मेहनत करके पहुंचना पड़ेगा। अब डिवाइड किससे करेंगे, जो भी इनका डिफरेंस है, एक यूनिट और दूसरी यूनिट में कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस, राइट? अगर यही आपको हाइयर यूनिट, अगर आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो हाइयर यूनिट है ग्राम, हाइयर से आप स्मॉलर में आ रहे हो, राइट? हाइयर से स्मॉलर में आओगे तो जब हम किसी ऊपर लेवल में पहुंच जाते हैं और नीचे आपको गिरना होता है, तो इन अ ब्लिंक एकदम से गिर जाते हैं ना, झटका लगता है, बहुत ही क्विकली, बहुत इजी होता है गिरना। तो वो इजी हम क्या करते हैं, हम ये इससे याद रखते हैं, मल्टीप्लाई करना। हाइयर से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करके आ जाओगे, और नीचे से ऊपर जाना है तो यू हैव टू डिवाइड योरसेल्फ, राइट? अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हमने जो डॉक्टर का ऑर्डर है विच इज इन द मिलीग्राम, हम वो ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ऑर्डर इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम। अब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम, ये बनाएगा 1 ग्राम। मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0.5 ग्राम डॉक्टर का ऑर्डर आ गया। सो दिस इज योर डॉक्टर ऑर्डर। यहां तक सबको समझ में आया? एनीवन हु इज हैविंग डाउट टिल नाउ? नाउ अगेन वी हैव टू पुट एंड सी ऑल द वैल्यू। तो डॉक्टर ऑर्डर है हमारा 0.5 ग्राम, एंड स्टॉक स्ट्रेंथ है हमारे पास, जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल था वो है 1 ग्राम, राइट? ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें एक और चीज गिवन है कि 1 ग्राम को जो जो आपके पास मेडिकेशन है, 1 ग्राम एक जो है, अगर आप 0.8 ml पानी डालोगे तो वो 1.2 ml सोल्यूशन देगा। हमें क्या निकालना है कि ये जो 0.5 ग्राम डॉक्टर का ऑर्डर है, इससे कितना सोल्यूशन मिलेगा, यही तो निकालना है हमें, कि ये जो पाउडर है इसमें जब आप 0.8 ml डालोगे तो कितना सोल्यूशन मिलेगा, ये आपको निकालना है। यही सोल्यूशन आप 50 ml के नॉर्मल सलाइन में ऐड कर दोगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस,
वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो x हमें निकालना है वो एक तरफ लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, राइट। सो x मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम is equal to 1.2 ml मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम। यहाँ पे x आ जाएगा, ये 1 ग्राम भी नीचे चला जाएगा। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे, टेल मी सबका आंसर क्या आ रहा है। सो वी हैव 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ग्राम, तो आंसर आएगा 0.6 ml, क्योंकि ये ग्राम नीचे आ गया 1 ग्राम, इसीलिए आपका 1 ग्राम से ग्राम कट गया और आंसर ml में आएगा। आंसर आपका प्रैक्टिस वर्ल्ड में 0.8 दिया है, विच इज रॉन्ग, मिसप्रिंट, वो प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे यू ऑल नीड टू करेक्ट द आंसर, करेक्ट होगा 0.6 ml, विच इज योर C, option number C. Now tell me the student, those who have joined on YouTube channel, any confusion till now? I hope ये clarity होगी how we have solved this question. हाँ, आंसर yes Joy, this is the reason why I said उसको करेक्ट करो, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। चलो, सबको क्लैरिटी है, या आंसर हमारा C कैसे आया? ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question is related to dopamine calculation. So again, the student from the Sun batch, you all can revise this. Dopamine का calculation कैसे करना है? So dopamine की calculation का जो flow rate formula है वो थोड़ा special, right? क्योंकि ये emergency drug है, इन्हें हम VIP drug बोलते हैं, just to remember, इसीलिए इनका flow rate का formula अलग होता है। And I request everyone to write down this formula. ये लिख लो क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फ्लो रेट ml पर आर में ही निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला में क्या है? डिजायर्ड डोज विच इज डॉक्टर ऑर्डर, टोटल डोपामिन डोब्यूटामिन कितना देना है। सो डिजायर्ड डोज बॉडी वेट किलोग्राम में है, किलोग्राम में। अब ये 60 को अभी मत लिखो, 60 में आपको बताऊंगी कहाँ पे लिखना है। सो डिजायर्ड डोज बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml, राइट। ml पर आर में फ्लो रेट निकलेगा ये पहले आप लोग अपना ये फॉर्मूला लिख लीजिए। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सो क्वेश्चन में क्या है, ये आपका डोपामिन कैलकुलेशन है, जिसमें डॉक्टर ने बोला है 400 मिलीग्राम 250 ml में डिसॉल्व करके देना है, जिसको इन्फ्यूज कर रहे हो 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट पे। पेशेंट का वेट भी केजी में दिया है, एंड आपको कितना फ्लो रेट सेट करना है वो निकालना है, राइट। यहाँ पे ये जो डिजायर डोज दिया है, ये डिजायर डोज हमेशा माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में ही होता है, चाहे डोपामिन हो डोब्यूटामिन हो, तो डिजायर डोज विल बी इन माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब जो जो वैल्यू आपको मिली है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है, राइट। तो हमें क्या क्या मिला हुआ है, हमें डिजायर्ड डोज मिला था, डिजायर्ड डोज जो कि माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में था। यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। ये 60 को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, आई टेल यू ये 60 कैसे आया और कहां से आएगा। तो फ्लो रेट निकालना है, डिजायर्ड डोज क्या हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो डिजायर्ड डोज हो गया 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। बॉडी वेट हमें केजी में गिवन है, यस केजी में है, विच इज 63, क्रॉस चेक कर लिया 63। उसके बाद ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml, ये हमें नहीं गिवन है, ये हमें निकालना है, राइट। तो बाकी चीजें हमें पता है, वी हैव टू फाइंड आउट ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml, राइट। तो ड्रग कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें, हमें दिया है कि 400 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम का डोपामिन हम 250 ml में डिसॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस इज योर ड्रग कंसेंट्रेशन, क्या आएगा 400 मिलीग्राम का डोपामिन आप 250 ml में डिसॉल्व करोगे। अगर फिर 1 ml की बात करें तो 1 ml क्या होगा, 400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 250 ml, ये आ जाएगा।
जब आपके ड्रग कंसेंट्रेशन में 400 मिलीग्राम का डोपामिन आप डिसॉल्व कर रहे हो 250 ml में, तो 1 ml में कितना हुआ? 400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 250 ml, ये 1 ml में होगा ड्रग कंसेंट्रेशन। ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये हम निकाल रहे हैं ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml, 1 ml में। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? यहां से 0 से 0 कटा, 5 एंड 8, सो ये आ जाएगा 1.6 मिलीग्राम पर ml। वेरी गुड। ये क्या आया हमारा? ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml। लेकिन अगर आप बाकी की वैल्यू देखो तो जो डॉक्टर का ऑर्डर था वो माइक्रोग्राम में था, लेकिन ड्रग कंसेंट्रेशन आई है मिलीग्राम में। दोनों अलग अलग यूनिट है, आपको सेम यूनिट चाहिए, तो ये मिलीग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा माइक्रोग्राम, राइट? चेंज करने का सिंपल रूल है, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज अ बिगर यूनिट, विच वन इज अ स्मॉलर यूनिट। सो मिलीग्राम एक हायर यूनिट है। हमारी लिक्विड की फैमिली कहाँ गई? हमारी लिक्विड की फैमिली, लिक्विड फैमिली जिसमें हमने पढ़ा था, चलो आई आई राइट डाउन। तो लिक्विड की फैमिली के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? सबसे पहले किलोग्राम, देन ग्राम, देन उसके बाद आएगा माइक्रोग्राम, देन मिलीग्राम, देन माइक्रोग्राम एंड देन नैनोग्राम। तो मिलीग्राम पहले आता है, माइक्रोग्राम बाद में आता है। दैट मीन्स मिलीग्राम इज हायर यूनिट, माइक्रोग्राम स्मॉल है, राइट? तो हायर से हमें स्मॉलर में जाना है। अब हायर से अगर स्मॉलर में जाना है, व्हाट वी हैव टू डू? जब भी किसी बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं और वहां से छोटे लेवल पे आना होता है तो बहुत आसान होता है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, राइट? सो 1.6 को अब आप चेंज करोगे ड्रग ड्रग कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए पर ml। आपने क्या किया? 1.6 मिलीग्राम पर ml को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 माइक्रोग्राम पर मिलीग्राम से, तो ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा, राइट? इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हमने हटा दिया, 10 हो गया, तो ये आएगा 1600 माइक्रोग्राम पर ml। दिस विल बी योर ड्रग कंसेंट्रेशन। द स्टूडेंट दोज हु आर हियर ऑन यूट्यूब, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यू हैव टू टेल मी एट एनी मोमेंट व्हेन यू फील लाइक यू आर थिंग्स आर गोइंग अबव योर हैंड, तो उसी मोमेंट पे आप मुझे बता दो। आई विल रिपीट द सेम, नो वरी। सो ये ड्रग कंसेंट्रेशन हमने अभी तक लिया है। अब ये जितनी भी वैल्यू है इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला जो डोपामिन का हमने अभी तक पढ़ा था वो था फ्लो रेट ml पर आर। और ये फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट में वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब डिजायर्ड डोज, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml। ये सारी वैल्यू अब मैं फॉर्मूला में ऐड कर दूंगी। डिजायर्ड डोज है 5 माइक्रोग्राम, पर केजी पर मिनट है तो केजी पर मिनट नीचे आ जाएगा। बॉडी वेट इन केजी आपका दिया है 63, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 63 केजी। और ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml मैंने कितना निकाला है? 1600 माइक्रोग्राम पर ml, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 माइक्रोग्राम पर ml है, नीचे है ml तो वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, व्हेन आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन, तो यहां से माइक्रोग्राम कट गया, केजी से केजी कट गया, राइट? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 63 एंड देन डिवाइडेड बाय 1600। So you will get after solving this 0.19 ml ऊपर की तरफ, नीचे आपका मिनट आ जाए, ये आया। बट ये आंसर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पे फ्लो रेट ml पर आर में पूछा है, आपका ml पर मिनट में आया है, तो ये मिनट को अब हमें चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, राइट? अब क्या करना है? मिनट को आवर्स में चेंज करना है। सो अभी हमारा फ्लो रेट कितना आया? फ्लो रेट वी नीड टू आइडेंटिफाई इन ml पर आवर, हमें मिला है 0.196 ml पर मिनट,
एंड दिस मिनट वी हैव टू चेंज इनटू आवर्स। सेम, मिनट जो है वो स्मॉलर यूनिट है, आवर्स जो है वो बिगर यूनिट है। अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। किससे डिवाइड करेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट? तो डिवाइड 60 से करेंगे। लेकिन लेकिन दोबारा समझते हैं, हमने ये समझ लिया डिवाइड करना है 60 से, लेकिन यहाँ मिनट ऑलरेडी नीचे की तरफ है, तो ये जो डिवाइड करेंगे इसके नीचे जो आएगा 60 वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, राइट? तो ये होगा मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट 1 hour। तो ये 60 मिनट से मिनट कट गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, so when you will solve this, when you will multiply it with 60, you will get 11.8 ml per hour. So this will be your actual flow rate. This is your correct answer, 11.8। अब आंसर में देखो कहीं 11.8 है? Yes, we do have 11.8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। क्लियर? इज इट फाइन? स्पेशली द स्टूडेंट फ्रॉम द यूट्यूब, प्लीज ये बताओ सबको समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पर भी कोई डाउट? आई विल रिपीट अगेन बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑल्दो थोड़ी लेंथी है। सो द चांसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन कमिंग इन द नॉसेट एग्जामिनेशन इज नॉट वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी कम है, बट वी शुड नो द कंसेप्ट। देखो, हमने यहाँ पे एक हमें बोला है रिपीट, चलो लेट अस क्विकली रिवाइज। सबसे पहले डोपामीन, डोपामीन का जो हमारा ये कैलकुलेशन है, इसमें हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला अलग है डोपामीन का, राइट? डोपामीन का फॉर्मूला हमने ये याद कर लिया। अब आपको याद आया, मैंने लास्ट में मिनट को आवर्स में चेंज किया, इसीलिए ये 60 मिनट पहले ही ऐड कर देते हैं। बट ये ऐड में पहले इसलिए नहीं कराती क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। सो हमें पहले क्या करना है, पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना है। सो फॉर्मूला क्या है डोपामीन कैलकुलेशन का? डिजायर डोज, फ्लो रेट होगा ml पर आवर में, वही निकालना है। बट द फॉर्मूला इज डिफरेंट, फॉर्मूला इज डिजायर डोज बॉडी मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन केजी, अभी 60 मिनट हम भूल जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय ड्रग कंसेंट्रेशन पर आवर। जो डिजायर डोज होगा वो आपका गिवन होगा माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में, राइट? डिजायर डोज इसमें गिवन होगा। बॉडी वेट केजी में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखना है, राइट? आपको हो सकता है पाउंड में भी मिले, लेकिन बॉडी वेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें केजी में डालना है, और नीचे ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml होगा, राइट? तो ये आपका फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पे आओ, बैक टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो डॉक्टर है उसने डोपामिन प्रिस्क्राइब किया है। यस जय किशन, वी हैव दिस सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब बिकॉज हमारे जो C+ के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये यूट्यूब पे भी लाइव हुआ है। सो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड डोज, ये मिल गया। अगला क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगला क्या चाहिए, बॉडी वेट इन केजी चाहिए। तो केजी हमें ऑलरेडी दिया है, और वो भी वेट जो है केजी में ही दिया है 63 केजी। इसके बाद आपको निकालना है ड्रग कंसेंट्रेशन पर ml। ये कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए आपको देखना है कि जो डोपामिन है वो कितना वॉल्यूम में इन्फ्यूज करना है। तो 400 मिलीग्राम डोपामिन हमें 250 ml में डाइल्यूट करना है, ऐड करके देना है। तो जब 400 250 में देना है तो 1 ml में कितना देना होगा, 400 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 250 ml, राइट? ये ड्रग कंसेंट्रेशन निकलेगी इसे सॉल्व करके। इसे जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आया 1.6 मिलीग्राम पर ml। लेकिन अब जो डॉक्टर का डिजायर डोज था वो तो माइक्रोग्राम में, 5 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम और मिलीग्राम दो अलग अलग यूनिट है, इसका मतलब हमें मिलीग्राम को चेंज करना पड़ेगा माइक्रोग्राम, राइट? तो मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कैसे चेंज किया, मिलीग्राम आपकी क्या है, एक बड़ी यूनिट है, माइक्रोग्राम एक छोटी यूनिट है। व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग हायर यूनिट टू द स्मॉलर वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि इजी टास्क है। तो 1.6 मिलीग्राम पर आपका ml से आपने मल्टीप्लाई किया 1000 क्यों लिया, क्योंकि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000
माइक्रोग्राम। 1000 का डिफरेंस होता है सॉलिड की फैमिली में, राइट। तो ये हमने 1000 माइक्रोग्राम, ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1600 माइक्रोग्राम पर एमएल, ये आपकी आ गई फाइनल ड्रग कंसेंट्रेशन, राइट। ये फाइनल ड्रग कंसेंट्रेशन आ गई। अब सारी वैल्यू आपने फॉर्मूला में ऐड कर दी, सबको आपने क्या किया, फॉर्मूला में ऐड कर दिया। ये आपका फॉर्मूला था, इसमें बस हमने 60 को अभी नहीं यूज किया, 60 हम बाद में यूज करें, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। सो डिजायर्ड डोज है 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, तो वो नीचे लिख लेंगे क्योंकि ऐड है, पर केजी पर मिनट है। बॉडी वेट इन केजी 63 है, 63 है, तो 63 केजी हो गया। ड्रग कंसेंट्रेशन 1600 माइक्रोग्राम पर एमएल है, तो ये एमएल ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये एमएल हो गया। अब डिवाइड, इसको सारा को सॉल्व करोगे तो माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कटा, केजी से केजी कटा, एंड व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस इक्वेशन 0.1 ml पर मिनट आपका आंसर है, 0.1 ml पर मिनट। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फ्लो रेट ml पर आर में निकालना है, आपका आंसर ml पर मिनट में आ रहा है। अब ये मिनट को चेंज करने के लिए ये जो 60 ये फॉर्मूला में ऐड किया था, ये इसीलिए ऐड किया था 60 मिनट, ताकि आंसर ml पर आर में आए। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो यहाँ पे 60 मिनट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो 1 आवर होता है, तो ये ml पर मिनट है, दिस इज ml पर मिनट, राइट। मिनट से मिनट कटेगा और ये आपको आंसर देगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 11.8 ml per hour आंसर। I hope now you all have understood how to solve the dopamine type of calculation. अभी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल। हिमांशी, ये बाय डिफॉल्ट आपको डोपामिन डोब्यूटामिन वाले कैलकुलेशन में ये मिलेगा। ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये आपको मिलेगा, ये गिवन होगा डिजायर्ड डोज, ये मिलेगा आपको। जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। नाउ टेल मी व्हाट, ओहो यहाँ पे हमने आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 16 है, right? Nurse Anita understand that informed consent is based on which ethical principle? So यहाँ पे 4 ऑप्शन है, justice, veracity, fidelity, autonomy. What do we mean by principle of justice? मतलब equal treatment, सबको सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी को भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल, हर एक को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है। व्हाट डू वी मीन बाय वेरासिटी? वेरासिटी का मतलब क्या है? वेरासिटी क्या होगा? वेरासिटी, वी हैव वेरी गुड कोमल, ट्रुथ टेलिंग, मतलब पेशेंट को हमेशा सच बताना है, ऑनेस्ट, वी हैव टू बी ट्रुथफुल टू द पेशेंट, ट्रुथ टेलिंग। फेयर ट्रीटमेंट, शीतल, जस्टिस हो गया। वेरासिटी मतलब ट्रुथ टेलिंग, आपको जितना हो सके पेशेंट से बिल्कुल सच्चाई रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है सब कुछ सच सच बताना है। व्हाट डू वी मीन बाय फेडिलिटी? फेडिलिटी मतलब कीपिंग वन प्रॉमिस, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप ओथ लेते हो अपने प्रोफेशन में कि हम लोग कुछ हार्म नहीं करेंगे, वी विल प्रोवाइड इक्वल केयर टू द पेशेंट, हाई क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल कीपिंग वन प्रॉमिस। मतलब हमें अपना जो भी हमने ओथ लिया है, जो भी हमारी कमिटमेंट है, जो भी हमारे प्रोफेशनल बाउंड्री के अंदर केयर आती है, वो सारी हम परफॉर्म करें। देन कम्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब डिसीजन मेकिंग।
सो पेशेंट का ये हमेशा राइट होता है कि पेशेंट खुद डिसाइड करेगा वेदर पेशेंट हैज टू गो फॉर दिस ट्रीटमेंट और नॉट, राइट। सो इन्फॉर्म कंसेंट, यहाँ पे कौन सा एथिकल प्रिंसिपल आया, यहाँ पे पेशेंट का डिसीजन है कि भाई उसे ये वाली चीज करनी है या नहीं करनी है। इन्फॉर्म कंसेंट में हम ऑटोनॉमी देख रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द ऑटोनॉमी, बिकॉज जो कंसेंट आप लोगे वो पेशेंट का डिसीजन है, दैट पेशेंट हैज टू डू दिस प्रोसीजर, राइट। पेशेंट हैज अ राइट, वेरी गुड कुलसुमा, पेशेंट हैज अ राइट टू टेक द डिसीजन वट एवर प्रोसीजर शी वॉन्ट्स टू डू और नॉट। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी आएगा। एक होता है अकाउंटेबिलिटी। What do we mean by accountability? Accountability का मतलब I am responsible for my action. If I am assigned to provide care to this patient during my care, अगर patient को pressure हो गया, that I am accountable. मैं responsible हूँ। Accountability मतलब responsible होना किसी चीज के लिए। So patient की care में during my shift duty अगर patient को pressure ulcer होता है या प्रेशर, पेशेंट को आप कोई और मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हो, दैट मीन्स यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस एक्शन, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी इज राइट ऑफ डिसीजन, अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse identify a client response to actual or potential health problem during which step of nursing process? नर्सिंग अगर प्रोसेस की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट, राइट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में व्हाट वी विल डू इन केस ऑफ असेसमेंट? मीनाक्षी एक बार बताओ मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ असेसमेंट? विल कलेक्ट डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को जो कलेक्ट किया है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद वैलिडेट करते हैं। विल वैलिडेट के जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो फैक्ट पे बेस्ड है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, राइट। फिडिलिटी मतलब कीपिंग वंस प्रॉमिस। जैसे आपने नर्सिंग में जब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में होंगे, आपने ओथ लिया था, लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हुआ था। सो लैम्प लाइटिंग सेरेमनी में क्या बोला जाता है कि हमारा प्रोफेशन ये है, वी हैव टू बी ट्रुथफुल। वो सारी चीजें जो आपने मेक श्योर करनी है कि आपको अपनी प्रोफेशन में डिलीवर करनी है, दैट इज फिडिलिटी, राइट। असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? हिस्ट्री से, इंटरव्यू लेके जिसमें आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा आता है, राइट। सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। इसके बाद जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो प्रायोरिटी वाइज, उसे वैलिडेट करते हो, चेक करते हो कि ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट करते हो। तो ये असेसमेंट का पार्ट हुआ। असेसमेंट में सिर्फ हम डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, असेसमेंट पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कहाँ पे, कौन सी स्टेज में नर्सिंग प्रोसेस के यू विल आइडेंटिफाई द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। एक्चुअल जो है, पोटेंशियल जो हो सकती है बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड फैक्टर, आगे जाके अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो असेसमेंट के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस वाला। नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है, एंड नॉट ओनली यू विल आइडेंटिफाई बट यू विल प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज भी करते हो कि पहले कौन सा देना है। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आपके पेशेंट को जो है एयरवे, आपके पेशेंट को जो प्रॉब्लम, जब आपने डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया तो कुछ इस तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस आई, एक्यूट पेन, इनएफेक्टिव एयरवे। इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? विच नर्सिंग डायग्नोसिस वी विल गिव द प्रायोरिटी? ऑफ कोर्स एयरवे को देंगे, हमेशा एयरवे प्रायोरिटी रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपने स्टेटमेंट बना लिया, नर्सिंग प्रॉब्लम हो गया डायग्नोसिस वाले स्टेप में। इसके बाद आप प्रायोरिटाइज करोगे सबसे पहले किसे ट्रीट करना है, तो एयरवे को हमेशा प्रायोरिटी, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। डायग्नोसिस वाले स्टेप में आप एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को स्टार्ट करो।
Identify the three component of problem focused nursing diagnosis statement. राइट, जो नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाई, तो कई बार नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ इस तरीके से होती है, जैसे इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू related to related to disease condition as evidenced by use of accessory muscle and excessive cuffing and visible secretion. अब ये पूरी एक कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस के पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया था सबसे पहले। इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट से बनी है आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस, राइट। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इनअफेक्टिव एयरवे, ये होता है प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक लेबल या प्रॉब्लम। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है उसकी इटियोलॉजी या कोई रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। इसके बाद एंड में आता है साइन एंड सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस प्रॉब्लम के, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे आपने ये प्रॉब्लम डिफाइन करी। तो पहले प्रॉब्लम या डायग्नोस्टिक लेबल लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाता है उसका बेसिकली इटियोलॉजी, क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। वेरी गुड शीतल, PES, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। एंड में इसी को ही प्रॉब्लम को डायग्नोस्टिक लेबल भी बोलते हैं। इटियोलॉजी में कई बार रिस्क फैक्टर भी आ जाते हैं कि रिस्क फैक्टर है इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड साइन एंड सिम्टम को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बोलते हैं। याद, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी दोनों एक दूसरे से ये वर्ड कनेक्टेड होते हैं विद द इंग्लिश फ्रेज रिलेटेड टू, राइट। ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा। ये ESIC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो नोट डाउन दिस। प्रॉब्लम एंड जो सेकंड आपका पॉइंट, सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस का, सेकंड इज योर इटियोलॉजी। प्रॉब्लम और इटियोलॉजी किससे जुड़े हुए हैं? रिलेटेड टू एक इंग्लिश फ्रेज है उससे। इटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक फीचर किससे जुड़े हुए हैं? एज एविडेंस बाय। ये 3 चीजें याद रखनी है, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डायग्नोस्टिक लेबल, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, बोथ A and B। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। You are taking handover of your assigned patient at the patient bedside. You notice that patient IV site is cool, pale, swollen, and solution is not infusing। मतलब पेशेंट की जो IV साइट है वो कूल टू टच है और IV फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो कम हो गया है, जा नहीं रहा है फ्लो रेट, और स्वेलिंग हो गई है वहां पे। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में याद रखना है स्किन हमेशा वार्म टू टच होती है, तो कूल नहीं होती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, राइट। इनफिल्ट्रेशन यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज इनफिल्ट्रेशन में जो स्किन है वो स्वेलन हो जाएगी। अगर आप चेंज नहीं करोगे इंड्यूरेशन हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगी वहां पे। एंड IV फ्लूइड आप कोशिश करोगे जाने की लेकिन जाएगा नहीं, उसका फ्लो रेट कम हो जाएगा क्योंकि वो जगह क्या है, इनफिल्ट्रेट हो गई है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन व्हेन द मेडिकेशन leak into the surrounding tissue। मेडिकेशन IV लाइन में, वेन में ना जाके कहा चली गई? सराउंडिंग टिश्यू में चली, राइट, सराउंडिंग टिश्यू में चली गई। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा इनफिल्ट्रेशन होगा। लास्ट का आंसर था ऑप्शन नंबर D, बोथ A and B। यस, सो आई एक्सपेक्ट कि ये सभी लोग मुझे करेक्ट आंसर देंगे। नाउ आई विल नॉट टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, स्टूडेंट फ्रॉम सन बैच एंड स्टूडेंट फ्रॉम यूट्यूब, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज वेरी बेसिक एंड आई अगेन होप कि बिना गलत आंसर के, कोई भी किसी एक ने A बोल दिया था, A किसने बोला? जल्दी बताओ।
यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, उसके बेसिस पे आंसर करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, टेल मी. विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी कैनुला करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही से मैच हो रहा है, ये नहीं पूछा जो इनकरेक्ट है. करेक्टली मैच, यहां पर ही नेगेटिव मार्किंग आती है. वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी टू आंसर. यू नीड टू फाइंड आउट कौन सा कैनुला करेक्टली मैच हो रहा है. सो लेट अस क्विकली रिवाइज. हमारा 14 गेज, देन वी हैव 16 गेज, 17 गेज, 18, 20, 22, 24 and 26. Quickly revise the color. Orange, 14 का ऑरेंज है, 16 का ग्रे है, 17 इज व्हाइट, 18 इज ग्रीन, जो कि सबसे कॉमन रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होता है, ये आपके ट्रॉमा में यूज होते हैं. 20 आपका पिंक हो गया, 20 इज पिंक, जो कि अडल्ट पेशेंट में यूज करते हैं जहां प्रोमिनेंट में. 22 ब्लू, ओल्डर अडल्ट या फिर आप पीडियाट्रिक में यूज करते हो. 24 एंड 26, 24 येलो है, 26 आपका पर्पल है, ये दोनों आप इन्फेंट में यूज करते हो. राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. यही एक कैनुला है जो ठीक से लिखा हुआ है, कलर. Yes, so this is the last question of today's session, and I have extended 10 minutes beyond your 10 p.m. So let us call this a last question and tell me, you have two patient receiving packed RBC and nurse assigned which of the following IV fluid to keep at the patient bedside. ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लो लास्ट मिनट रिविजन में. राइट, फ्लूइड ऑफ चॉइस in bowl is RN. Fluid of choice in blood transfusion reaction is normal saline, 0.9%. Fluid of choice in case of TPN, total parenteral nutrition. Fluid of choice क्या था बताइए. What will be the fluid of choice in case of total parenteral nutrition? Oh yes, it is 10%, not 5%. 10% dextrose. So 10% dextrose in case of total parenteral nutrition. अगर आपके पेशेंट को TPN चल रहा है तो 10% dextrose पेशेंट के बेड साइड पे रखेंगे. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन रखेंगे. बर्न के केस में हमें RN. ये तीनों आपको बिल्कुल टिप्स पे रटे होने चाहिए. सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेशन. आई होप आप सब लोगों ने मार्किंग कर ली होगी अपने प्रैक्टिस कॉल में, एंड नेक्स्ट मंडे वी कम अगेन एंड डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए. विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट मंडे. भावना 10% होगा, काइंडली करेक्ट दिस, इट विल बी 10%. So yes, stay happy, stay healthy and stay hydrated. See you all next Monday, C+ student, and see you all in the upcoming days हमारे सन बैच के student.